friends. Hello friends, I am Dr. Satkala and our today's topic is Where the Mind is Without Fear. This poem is written by Ravindranath Tagore. Where the Mind is Without Fear. First, it was written in Bengali by Ravindranath Tagore in 1900, and at that time the title of the poem was Pratna. It was in Bengali. Title was Pratna. Pratna means prayer. You know. Here in this poem, here is the vision of a new and awakened Indian. And after that, this Bengali poem was translated by Ravindranath Tagore in 1911 and it was published in 1912, and it is the part of Gitanjali. It is 35th song in the Gitanjali, and all we know that Gitanjali, it was written in 1911, published in 1912, and it got Nobel Prize in 1913. So this is the background here in this poem. Here this poem, it is the form of in a prayer. Here Ravindranath Tagore prayed to God for the true freedom of his country. He don't want only freedom, but he want only true freedom. Which type of freedom? He wants that knowledge should be free. There should be no foundation. There should be no restrictions about knowledge. All should have dignity, self-respect, and all can have right to express his views, his ideas, her ideas, and there should be no foundation. There should be no domestic walls on the base of caste, color, and religion. Let us start the poem. It's very interesting poem, and this is before the freedom. Before the freedom, and here Ravindranath Tagore prayed to God for the freedom, and that was the true freedom. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. Where Ravindranath Tagore wants that type of place, that type of country where the mind is without fear. Here, praise to Almighty, praise to God that our countrymen should be free from any fear of oppression or forced compulsion. He wishes that everyone in his country has his head held high in dignity. They should have self respect, they should have dignity. उनका सिर जो है सम्मान से ऊंचा होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए. In orders according to him, here should be a true or free country. Every person should be fearless and should have a sense of self dignity. Where knowledge is free. I want a nation where knowledge would be free. Education should not be restricted to the upper class only. There should not be this type of restriction that education, knowledge will be only for upper class. This will be on this caste. This will be for only this religions. There should be no in this way, but everybody should be allowed to acquire knowledge. Not only that, the children should learn free from the nature they should around them. And Ravindranath Tagore, he wants that there should be no restriction on children. They should learn अराउंड दियर सराउंडिंग. रविंद्रनाथ टैगोर कहता है कि बच्चों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए. उन्हें स्टिक लेकर सिखाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें खुले में छोड़ देना चाहिए, और वो अपने अब चारों ओर को नेचर से बच्चों को सीखना चाहिए. वो इधर उधर अपने नेचर में देखेंगे और उसके थ्रू वो सीखेंगे. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic wall. और यहाँ पे कहता है कि हमारा जो there should be unity not only of his countrymen, but that should be also for entire world. He thinks there should be no division among people based on their caste, color, religions. देर शुड नॉट बी, है ना. ये नहीं होने चाहिए कि गोरे लोग हैं, काले लोग हैं, इस बेस के ऊपर कोई भी जो है डिवीजन नहीं होना चाहिए. यहाँ पे कोई भी प्रिजुडिस नहीं होने चाहिए. नैरो डोमेस्टिक वॉल्स बीच में नहीं होने चाहिए. किस बेस के ऊपर? कास्ट के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, कलर के ऊपर. इस बेस पे इस टाइप की कोई भी वॉल नहीं होनी चाहिए. वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन. और कहता है नेशन जहाँ पे पीपल जो हैं ट्रूथफुल होने चाहिए. मैंने एक लाइन छोड़ दी. वेयर वर्ड्स केम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ
ट्रूथ, जहाँ पे जो लोगों के पीपल आर ट्रूथफुल होने चाहिए, दे शुड नॉट बी सुपरफिशियल, दिखावटी नहीं होनी चाहिए, वर्ड्स शुड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ देयर हार्ट्स, जो भी वो वर्ड्स बोलें वो उनके हार्ट्स के डेप्थ से आने चाहिए, गहराई से आने चाहिए। ऐसा नहीं हम दिखावा करें, आजकल क्या चल रहा है दिखावा ज़्यादा, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सुपरफिशियल मीन्स दिखावटी, ऐसे सुपरफिशियल हमें नहीं होना चाहिए। जो भी वर्ड्स जो कुछ भी हम बोलें दैट आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वो हमारी गहराई से हमारी ट्रूथ से आने चाहिए। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, और यहाँ पे कहता है कि जो एवरीवन जो कोई भी वर्क करे, हार्ड वर्क करे, जो अपने गोल तक पहुँचने के लिए, व्हाट वाज द गोल एट द टाइम, दैट वो गोल वाज द ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम का जो गोल होना चाहिए, कहता है कि यहाँ पे हमें हार्ड वर्क करना चाहिए गोल को पाने के लिए, लॉन्ग रन टू रिच परफेक्शन, और हम सबको जो है अपने आर्म्स, अपने हाथ जो बढ़ाने चाहिए परफेक्शन के लिए हमें बढ़ाना चाहिए। हम जो हैं पॉइंट यहाँ पे सोच रहा है कि ऑल वन पीपल शुड नॉट बी टायर्ड बाय वर्किंग, पीपल शुड नॉट बी लेजी एंड इग्नोरिंग देयर वर्क, यहाँ पे लोगों को टायरलेस नहीं होना है। स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स, हमें अपने गोल के लिए हमें कंटिन्यू जो है वो प्रोग्रेस में रहना है, कंटिन्यू जो है लगा रहना है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, यहाँ पे कहता है पोइट कहता है कि कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल, वेयर द क्लियर स्ट्रीम, हमारे जो लॉजिक है, रीजन है मीन्स लॉजिक, हमारा लॉजिक जो है वो स्ट्रीम, झरने में जैसे क्लियर पानी में क्लियर जो कुछ भी गिरा होता है वो दिखाता है, वैसे ही हमारा गोल जो है, हमारा जो लॉजिक है दैट शुड बी क्लियर, वो कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। हमारा जो कुछ भी हम सोचते हैं दैट शुड बी क्लियर, लॉजिक थिंकिंग जो हमारी क्लियर होनी चाहिए स्ट्रीम की तरह। और उसमें यहाँ पे जो डेड हैबिट्स बोले हैं, ड्रेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, ये क्या है, हमारी सुपरस्टिशंस हैं, हमारी जो बैड हैबिट्स हैं, जितने भी बेसलेस जो हमारे बिलीव्स हैं, विश्वास हम करते हैं, ऑल दैट आर ड्रेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड। तो कहता है कि हमारा जो लॉजिक है, रीजन है, मीन्स हमारा जो गोल है दैट शुड बी क्लियर, है ना, वो किसी में रास्ते में लॉस्ट नहीं होना चाहिए, कहाँ पे गुम नहीं होना चाहिए। हमारे जो अंधविश्वास है, हमारी जो बेसलेस जो ट्रेडिशन है उनके बीच में, और यहाँ पे पाँचता है स्ट्रीम ऑफ रीजन नॉट टू लूज इट्स वे इनटू द डेजर्ट ऑफ प्रिजुडाइस, किस रूपी डेजर्ट में, डेजर्ट यहाँ पे किसको सिंबलाइज कर रहे हैं, जो हमारी सुपरस्टिशंस हैं, जो अंधविश्वास हैं उनके लिए। और पीपल थॉट शुड बी मॉनिटर्ड बाय रेशनल थिंकिंग, हमारी थिंकिंग जो है रेशनल होनी चाहिए, सुपरस्टिशन नहीं होनी चाहिए। लॉजिक शुड रूल ओवर ओल्ड बेसलेस, हमारे जो लॉजिक हैं उनको जो है रूल करना चाहिए उन पे। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ पे पोइट यहाँ पे विश कर रहा है कि कंट्रीमैन टू बी प्रोग्रेसिव एंड ब्रॉड माइंडेड, कैसे होने चाहिए, कंट्रीमैन शुड बी प्रोग्रेसिव एंड ब्रॉड माइंडेड, ही वांट्स दैट देयर माइंड्स आर लेड फॉरवर्ड टू आवर वाइडनिंग नवर थॉट एंड एक्शन, उनकी जो एक्शन है वो कैसी होनी चाहिए, आवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, है ना, उनकी थॉट जो ओपन माइंडेड थॉट होनी चाहिए बाय द अलमाइटी। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द इनटू एवर वाइडनिंग, एवर वाइडनिंग मीन्स ओपन माइंडेड थॉट होनी चाहिए, उनके एक्शन जो भी काम करें ओपन माइंडेड होकर के काम करें। वी शुड बी ओपन माइंडेड एंड डू समथिंग अनयूजुअल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवरकमिंग द नैरोनेस ऑफ माइंड, हमारे माइंड के अंदर जो नैरोनेस है, जो तंग जो विचार हैं वो नहीं होने चाहिए, ओपन माइंडेड हमें होना चाहिए, जहाँ पे हमारा माइंड जो है लेड फॉरवर्ड बाय दी, फॉरवर्ड करना चाहिए, कहाँ पे हमारा ओपन थिंकिंग होने चाहिए, किसके ऊपर ओवरकम होना चाहिए, जो नैरो थिंकिंग है उसके ऊपर हमें ओवरकम करना पड़ेगा। In the last into that heaven of freedom my father let my country awake, into that heaven, यहाँ पे पोइट एड्रेस कर रहा है किसको, गॉड को, एज ए फादर, फादर यहाँ पे किसको एड्रेस किया, गॉड को। He asked him to awaken his country into such a heaven of freedom, जब ये सारी होंगी there will be no narrowness, ओपन माइंडेड थॉट होएगी, नॉलेज विल फॉर ऑल, लॉजिक थिंकिंग होएगी, रीजनल थिंकिंग होएगी, और जो सुपरस्टे देयर विल बी नो सुपरस्टेशन, आफ्टर दैट दिस प्लेस माय कंट्री विल बी ऑफ हेवन ऑफ फ्रीडम। तो उसमें फिर गॉड फादर जो हैं, गॉड जो हैं, उनको क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं वेयर द अबो कंडीशंस मीट, ये सब जो कंडीशन है, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे कंट्री को आप इस तरीके से अवेक कीजिए, इस तरीके से जगाइए, इस तरह से उनको सद्बुद्धि दीजिए, उनको नॉलेज दीजिए कि मेरा जो कंट्री है वो हेवन ऑफ फ्रीडम जो है बन जाए। जब ये सारी जो ऊपर जो
बताई हैं वो सारी अगर उसमें रिक्वायरमेंट होती हैं, लोगों की थिंकिंग है, लोगों का जो आपसे जो डोमेस्टिक वॉल्स हैं on the basis of caste, color and religion, all will be disappear, and after that our country, this place will be the heaven of freedom. This is the most important, and this is in the form of a prayer. May you like it. If you like it, please like, share and subscribe. Thanks a lot.